classes. Now today's agenda, we have to cover thread. We have to we have to include applets also. Applet में हम लोग थोड़ा बहुत ही देखेंगे. We not cover into a deep down, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि प्रोग्रामिंग लेवल में हम लोग applets बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं. Then swing for GUI interface, graphic user interface और मतलब इसके लिए कि हमें एक कोई सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है. एट दैट टाइम वी विल यूज स्विंग. टुडे वी विल सी, मतलब लास्ट में मैं एक एग्जांपल या क्रूड ऑपरेशन जो मैंने किया है वो आपको बताऊंगा हाउ स्विंग वर्क्स. एंड देन JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, मींस डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, हाउ वी कम्युनिकेट बिटवीन जावा एंड MySQL और डेटाबेस. और डेटाबेस कैन बी Oracle, can be MySQL, can be MongoDB, any database can be configured with the help of JDBC. And then SS modifier in Java. SS modifier we have to cover, means we should have to cover in the initial part of the Java classes, but that's a syllabus need. मतलब syllabus में सबसे last में लिखा था SS modifier, so we will cover this one also. SS modifier is nothing but private, public, process, default, protect, default, and other SSifier, just like synchronization, static, volatile. So we will cover all this thing. What is thread? Thread is a lightweight sub process small unit. एक छोटा सा यूनिट होता है प्रोसेस करते वक्त. तो द स्मॉल यूनिट ऑफ अ प्रोसेसिंग, एक छोटा सा यूनिट होता है. ठीक है, बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसका छोटा छोटा जो काम होता है वो थ्रेड में प्रोसेसिंग होता है. Multiprocessing and multithreading both are used to achieve multitasking. Both are used to achieve multitasking, represent a separate path of execution of a group and statement. Java is the first language to include include threading within the language rather than treating as a facility of an OS. OS means operating system. वैसे थ्रेड का जो फंक्शनलिटी है, जो काम करने का जो वे है, वो OS के थ्रू है. OS ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने पढ़े ना, दैट स्लाइडिंग विंडो. देन ऑपरेटिंग सिस्टम मींस हाउ मेमोरी मैनेज, हाउ द वैल्यू विल बी सेव इन मेमोरी. मींस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे वो रजिस्टर होते हैं, वो रजिस्टर में एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोलर होते हैं जो प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं. रजिस्टर यूज करता है वो मेमोरी जो सेव हुआ है. तो सेम वे में जावा ने क्या किया, ओएस के ऊपर ना डिपेंड होते हुए मेक देयर ओन थ्रेड क्लास इन JVM. तो अब जावा को ओएस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. So Java is the first language to include threading within the language rather than treating as a facility of OS. Thread OS की functionality है जो Java ने inbuilt करवा लिया है. So we don't have to explicitly call this OS. Okay. Thread कहाँ use होता है? Thread can be used in video game. Just like an example, one thread is for a graphic, one thread used for user interaction, and one thread for networking. This thread is working simultaneously at a time. मतलब एक ही समय में तीनों भी काम करते हैं, तब जाके हमारा वीडियो गेम वर्क करता है. ओके, so these are the basic means simple example of your thread और कैसे thread work करता है. So these are the means things. One thread for graphics, one thread for user interface, and one thread for networking. When three things work simultaneously, it will become a video game. And that simultaneously working is nothing but a multi-threading. Okay, the process is called multi-threading. When number of threads working together for a one resource is called multi-threading. And another example, do various job, handle server clients. सर्वर एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि सर्वर को हैंडल करना, क्लाइंट को हैंडल करना. जब हम लोग सर्वर पे टाइप करते हैं तो क्लाइंट भी टाइप कर सकता है. देन सर्वर का मैसेज जाता है क्लाइंट को एंड क्लाइंट का मैसेज जाता है सर्वर को. देन व्हाटएवर द मैनिपुलेशन इट विल डू. So we will do various job inside this with the help of server example. Means with the help of thread, and with the help of thread we can do a server client communication also. Advantage of thread: it is easier to implement. Yes. Better performance because number of thread working together, so it make a better performance. Multiple tasks, as we see, we can do multiple tasks at a time, just like a graphics, user interface and networking at a single instance. मतलब एक ही instance में एक ही time में मैं एक से ज्यादा काम कर सकता हूँ.
एंड शेयर रिसोर्सेज मीन्स एक रिसोर्सेज है, जैसे कि मैंने ग्राफिक लिया तो वो थ्रेड मीन्स वो जो ग्राफिक का रिसोर्स है वो मैं दूसरे थ्रेड को भी यूज करवा सकता हूँ. तो इट विल शेयर द रिसोर्सेज जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ अगर मैंने एक वैल्यू लिया इंट एक्स, तो दो थ्रेड अगर कॉल हो रहे हैं तो दोनों भी थ्रेड वो इंट एक्स की वैल्यू को यूज कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट अ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. ओके, वी विल सी. मतलब ये एग्जांपल में मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा हाउ द थ्रेड इज वर्किंग, बट फॉर सिंपल पर्पस की for theoretical things we have to go with this ppts or with these presentations. I write one program, default thread in any java program. ठीक है. JVM uses to execute a statement, default thread in any java program. मेन जो थ्रेड होता है, मेन वाला जो थ्रेड होता है ना, जहाँ पर हम लोग मेन लिखते हैं, सिस्टम स्टैटिक क्या है, स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो लिखते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट योर मेन और डिफॉल्ट थ्रेड इन अ जावा प्रोग्राम. ओके. JVM use, yes, JVM use JVM used to execute program statements. JVM used to execute program statements. This is a program, simple program. This is what a default thread in a Java program. This is a object of calling a thread. मतलब thread class को call करने के लिए ये thread का object बनाया. And then currently means a method inside a thread class के अंदर में जो भी method है, just like an example we call a dot current thread. तो current thread में जो भी values आएंगी वो मुझे यहाँ पे दे देगा. Okay. So this will output will be. I'm not audible. Hello. Is I'm audible? Is I'm audible? So what will be the output? It will give the current thread as main thread and the name is main. Okay. So output will be Sandhya having further. Thread in Java. Creating a thread in Java means for creating a thread we have two way to create a thread. हम लोग दो तरीके से thread को create कर सकते हैं. One is extending by thread class, thread class को extend करके, और second है implementation of runnable interface. Both are working same. दोनों भी सेम वर्क करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज दिस थिंग फॉर इंटरफेस बिकॉज इंटरफेस हैविंग डायनामिक सेंस ऑफ प्रोडक्ट मींस कोडिंग. जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो इंटरफेस अपने तरीके से रन होता है, बट थ्रेड क्लास क्या होता है कि उसके पास जो क्लास में मेथड्स बनी हुई है हम लोग सिर्फ वही यूज कर सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाई using an interface is always a first preference of a developer instead of using a extended class, using of extended class. uh, in thread class there is a method run and start. Run method must have be overridden similar to main method of a sequential program. जैसे main method हमारी override होती है वैसी run method अगर thread हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं thread की, so run method should be there and it will be overridden. Okay, how it will be overridden we will see. Okay, run method run is called when execution of a thread begin. जैसे ही thread का execution start होता है at that time run method will be called. A thread will be terminated when run returns. मतलब जब run
method का value return होता है, at that time it will give as it will give an आउटपुट। जैसे ही वो रिटर्न बाहर यानी रिटर्न करता है कुछ वैल्यूज, तो उसका प्रोग्रामिंग यानी थ्रेड प्रोग्रामिंग बंद हो जाता है। ओके, एंड स्टार्ट मेथड इन्वोक रन मेथड, ये स्टार्ट मेथड रन मेथड में जो लिखा हुआ है उसको कॉल करने के लिए यूज होता है। ओके, so all the implementation written inside a run method, and for run method calling you have to run invoke or write a start method. So start method invokes a run method. Then same thing for a Java runnable interface, मतलब जैसे ही मैं interface runnable interface implement करता हूँ for making a thread, same method same process come into picture, ये same process आती है, ठीक है। Then there is a method in a thread, just like run for initialize the thread, start for invoking a run method, then sleep, wait, join, get priorities, set priorities, notify all. सेट प्रायोरिटी मतलब कि प्रायोरिटी सेट करना, कौन सा थ्रेड कब काम करेगा। गेट प्रायोरिटी मतलब कि वो थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, मतलब देयर इज अ प्रायोरिटी बिटवीन 1 to 10। ओके, 1 is minimum priority and 10 is the higher priority। okay, and जो नॉर्मल प्रायोरिटी है वो 5 है। जब भी हम लोग थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, तो क्या होगा कि उसका जो वैल्यू है वो 5 दिया जाएगा, दैट इज द नॉर्मल प्रायोरिटी। notify all, yeah, notify means when thread is in waiting and try to execute some process, it will come into a notify things। notify all, yeah, get name, get id is alive current thread। just we have seen a method current thread in a previous program, the same method we are here। is daemon, a daemon is a type of thread, एक thread होता है जो सर्विस थ्रेड के तरीका काम करता है, मतलब कि जो मेन थ्रेड है, जो रियल थ्रेड्स है वो वर्किंग कर रहे हैं, मेन डेमोन थ्रेड बैकएंड में काम करता है, जस्ट लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर। just like a service provider means taking a garbage collection close, और जो भी रनिंग हो रहा है वो क्लोज करने का, फाइल ओपन है तो उसको क्लोज करने का जो काम है हम लोग डेमोन थ्रेड को कर सकते हैं। सेट डेमोन इज अनदर मेथड, एक नॉर्मल थ्रेड को मैं डेमोन बनाने के लिए सेट डेमोन करूंगा, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर मेथड्स वी विल सी। ये सारी मेथड्स आज हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे। आई विल गिव अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसा होगा, सिंपल, it's coming with a new thread। new thread is nothing but in a run। मैंने स्टार्ट किया मतलब रनेबल में आ गया, ठीक है। रनेबल मींस इट इज इन अ रनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब रनेबल प्रोसेस को मेरे को रनिंग में करने के लिए मैंने क्या किया, ये स्टार्ट मेथड को कॉल किया, दैट्स कमिंग इनटू रनिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा, एंड फॉर लूप लिखने के बाद it will executing I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3। तो ये जो प्रोसेसिंग चल रही है that is nothing but a running। when for loop खत्म हो गया, that is nothing but the terminate। okay, between runnable and running there is a method non runnable state, मतलब कि वो सोया हुआ है या फिर स्टॉप किया हुआ है उसका प्रोसेसिंग। फॉर डूइंग दैट वी हैव टू डू स्लीप वेट, ये मेथड का यूज करके हम लोग वो जो थ्रेड चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, उसको रोक सकते हैं हम लोग। ओके, so these are the sleep method, block on input output, wait कि हम लोग थ्रेड को बोलते हैं that wait for some minute और wait for some things कि ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आप वर्किंग में करो। so this is the method for make that thread in a non runnable state। अब रनेबल स्टेट से वापस रनेबल में लेके आने के लिए वी हैव टू पुट स्लीप डाउन, completed, lock available, resume और notify। most of the time we will use notify एंड वो थ्रेड को नोटिफाई करने का कि यू कैन प्रोसेस फर्दर और वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे थे और रुक गए थे उसको वापस से रिज्यूम कर लो। तो वी विल यूज नोटिफाई। दिस इज मींस इंटरव्यू क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन द थ्रेड साइकिल ऑफ मींस लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। so you have to go with these 5 stages: new, runnable, running, terminated and non runnable। while non-runnable is not a process inside means is not a process of a thread running, it's a process of non-runnable thread।
For making a thread from new to runnable, we use start method, and run method exits while we are terminated that thread. Explanation of each and one, जो हम लोगों ने ऊपर में ये सारी चीजें देखी, इसी का explanation है यहाँ पे. New, the thread is in a new state if we create an instance of a thread class but before the invocation of start method. Start method के पहले ही वो new method को क्या करना चाहिए, thread बन जाना चाहिए. Runnable, the thread is in runnable state after invocation of start method, but the thread scheduler has not selected it to be a running thread. Scheduler ने start means but the thread scheduler has not selected it to be a running thread. ये running thread नहीं होता, ठीक है. जब तक run method start method run method को call करके run method working में नहीं लेके आता, तब तक running process नहीं होता है. Okay, the thread is in running state if the thread scheduler has selected it a non runnable block. जैसी ये स्टार्ट मेथड प्रोसेस में वर्किंग करना शुरू कर देगी तो ये मेरा रनिंग मोड पे आ जाएगा. नॉन रनेबल एंड ब्लॉक, दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट इट्स करंटली नॉट एलिजिबल टू रन. अलाइव है मतलब इट इज ऑन अ प्रोसेस में है बट वो उसको यूज नहीं कर सकते हम लोग, या वो रनिंग नहीं है, या फिर उसके जो भी आउटपुट्स आना चाहिए हम लोग वो नहीं देख पाएंगे बिकॉज इट इज इन अ नॉन रनेबल मोड. And then terminated, that is what means is a thing कि जो run method है वो बंद हो चुकी है, it exists of run method or a dead state when the run method exists. What is that, thread priority? I think so, yes, it's a thread priority. I have already discussed about the thread priority, but again according to the slide, so each thread have a default value. हर एक इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है. सो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 5, दैट इज द नॉर्मल प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड. ईच एंड एवरी थ्रेड है जब हम लोग इनिशियल वे में बनाते हैं, जब इनिशियलाइजेशन करते हैं कोई भी थ्रेड का, तो उसका जो प्रायोरिटी है वो 5 ही रहता है. ओके, देन यू कैन रीसेट द प्रायोरिटी यूजिंग अ सेट प्रायोरिटी मेथड है, जिसमें हम लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ 1 to 10. ये इन प्रायोरिटी के अंदर में हम लोग 1 से 10 तक का वैल्यू दे सकते हैं, जिसमें उसका वैल्यू सेट हो जाएगा और वो उस अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा. बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज जस्ट अ हिंट, इट इज जस्ट अ हिंट टू अ थ्रेड टू वर्क अकॉर्डिंगली. ओके, इट इज जस्ट अ थ्रेड टू वर्क अकॉर्डिंगली. So you can reset the priority using set priority. You can reset the priority using set priority and the value become from 1 to 10. Okay, some constant for priority includes, as I say, the minimum priority of 1 and maximum priority of a 10. This is the minimum and maximum. You have to define just like this: set priority 1, set priority 2, and we have to initialize with the thread object. Thread का object बनाया मैंने, dot that priority whatever you have to do, मतलब जो भी आपको देना है वहाँ पे. Then another thread functionality of a daemon thread. Daemon thread is a service provider thread that provides service to the user thread. Its lives depend on the mercy of user thread. जो mercy thread is nothing but your main thread. अगर main thread बंद हो जाता है तो automatically daemon thread भी बंद हो जाएगा. Okay, when all the user thread or main thread will be die or burn and terminated, automatically daemon thread will be terminated. JVM terminate this thread automatically. There is no need to call anything. It will means वो automatically ही terminated हो जाता है. There are many Java daemon thread running automatically. Backend में बहुत सारे daemon thread automatically चलते रहते हैं. जैसे garbage collection हो गया, finalizer. Garbage collection is nothing but to collect a garbage. Is Java memory जो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के लिए हम लोग ने डिफाइन की थी, बट वो प्रोसेस होने के बाद वैसी ही रखी हुई है JVM में.
तो जावा क्या करेगा, गार्बेज कलेक्शन का यूज करके जो अनयूज मेमोरी स्पेस है, जो एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम लोगों ने मेमोरी अलोकेटेड की थी, उसको वो हटा देगा, मीन्स उसको फ्लैश कर देगा वहां से, मेरे मेमोरी स्पेस से, स्टैक से, या फिर अपने हिप मेमोरी से। ओके। फाइनलाइजर, वॉट एवर भी इन जैसे हम लोगों ने कुछ चीजें ओपन करके रखी है, उसको ऑटोमेटिकली बंद करना, जस्ट लाइक अ कनेक्शन ऑफ योर डेटाबेस और ओपनिंग अ फाइल एंड रीडिंग देयर। सो फाइनलाइजर will help to automatically do the things. Set daemon and is daemon is a method used for a daemon thread. Set daemon means कि कोई normal thread को daemon बनाने के लिए set daemon, और कोई normal thread है वो check करने के लिए कि वो daemon है या नहीं है, so we will use the method is daemon. Thread synchronization is another मीन्स अभी तक क्या देखा था हम लोगों ने, थ्रेड वन बाय वन वर्क कर रहा है, या एक थ्रेड एक टाइम में ही वर्क कर रहा है। जब एक रिसोर्स के ऊपर नंबर ऑफ थ्रेड वर्किंग करते हैं, एट दैट टाइम इट इज नथिंग बट अ मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग यूज, जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आने वाला है ये हमें पता नहीं रहता है, दैट इज व्हाट रैंडम आउटपुट्स। So make that output according to our condition. At that time we use a thread synchronization, means sync में चलने का। Okay. A shared resource may be corrupted if it is accessed simultaneously by multiple thread. Multiple thread at a time use करने पे क्या होगा कि जो output है वो बरोबर नहीं आएगा, या फिर जो resource है वो corrupt हो जाएगा। Two example, two unsynchronized thread accessing the same bank account may causes conflict. Yes, एक एक बैंक अकाउंट है और दो यूजर उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। एक ने क्या किया कि एज एन एग्जांपल 1000 रुपीज निकालने गया, मीन्स विड्रॉ करने गया, बट वहां पे 500 रुपए है, और सेकंड जो थ्रेड है वो 2000 रुपीज जमा करने गया। बट मैंने क्या किया, पहले क्या थ्रेड का यूज किया, मैंने विड्रॉल वाला जो थ्रेड है उसका यूज किया, तो मेरे पास तो 500 ही रुपीज है, तो वो आउटपुट देगा क्या? नहीं। अगर मैंने थ्रेड की प्रायोरिटी चेंज किया और सिंक्रोनाइज कर दिया कि नहीं, पहले मेरे को थ्रेड में बैंक में डिपॉजिट वाला जो थ्रेड है वो वर्किंग करना चाहिए, एंड देन विड्रॉल वाला। सो अगर मैं पहले डिपॉजिट करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2500, एंड देन withdrawal will taken out of 1000, so it will make easy for that. अदरवाइज इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, और जो रिसोर्स रहेगा वो मैनेज नहीं हो पाएगा। ये छोटा सा एग्जांपल है। सेम वे में थ्रेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी वैसे ही वर्क करता है। नोन एज अ रिस्क कंडीशन इन मल्टीपल थ्रेड, एक ही चीज के ऊपर दो दो चीज, यानी वन थ्रेड हैविंग नंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट हैविंग नंबर ऑफ थ्रेड्स टू बी वर्किंग इज नथिंग बट अ रेस कंडीशन। ये रेस कंडीशन होगी। ओके। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो थ्रेड वर्किंग कर रहे हैं, वन हैव टू वेट, वन हैव टू पुट योर मीन्स ये थ्रेड के अंदर में, ये ऑब्जेक्ट के अंदर में ये थ्रेड जाके वर्किंग करेगा, थ्रेड टू हैव टू बी स्टॉप देयर टिल द थ्रेड वन हैव टू बी वर्किंग आउट, जब तक थ्रेड वन का वर्क खत्म नहीं होता। अ थ्रेड सेफ क्लास डज नॉट कॉजेज द रेस कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ मल्टी थ्रेड। अ थ्रेड सेफ वो क्लास होती है जो रेस कंडीशन को अवॉइड करती है, बिकॉज इंटरनली इट विल यूज सिंक्रोनाइजेशन। What is problem is race condition. Q solution is exclusive access to one thread at a time to code that manipulate and a share object. रेस कंडीशन मतलब एक ही ऑब्जेक्ट दो थ्रेड वर्किंग कर रहे हैं। ओके, थ्रेड टू एंड थ्रेड वन। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों भी थ्रेड जो रिसोर्स है उसको अपने तरीके से वो चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर जो भी कैलकुलेशन करना है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर से ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, जो T1 यूज कर रहा है तो T2 स्टॉप हो जाए, या फिर T2 यूज कर रहा है तो T1 स्टॉप हो जाए। ओके। ये है ये ये जो T1 एंड T2 है हैव देयर ओन साइमल्टेनियस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू यूज द ऑब्जेक्ट, otherwise it will corrupted this object. Whatever the value inside the object, just like a variable x equals to 10, अगर इसने ऐड किया, इसने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है वो बरोबर नहीं मिल पाएगा हमें। तो अवॉइड दिस कंडीशन, exclusive access to one thread at a time to a code that manipulates object. It keeps other thread waiting until the object is available.
रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड को वेट करना पड़ेगा दूसरा थ्रेड यूज करे, और synchronize keyword synchronize the method so that only one thread can access the method at a time. To avoid a race condition we can use the synchronize method. synchronize keyword का यूज करके भी हम लोग ये परफॉर्मेशन कर सकते हैं कि method 1 t1 डॉट सिंक्रोनाइज एंड t2 डॉट सिंक्रोनाइज कर दूंगा मैं, या ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट डॉट सिंक्रोनाइज कर दूंगा, तो इट विल एग्जीक्यूट वन थ्रेड एट अ टाइम एंड वेट फॉर द अनदर थ्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड. This is the example or a way to define a synchronous method. एक मेथड है ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसके अंदर में ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर ये मेथड का जो भी कॉल अप होगा. synchronize void x method you can means you can return a value also. ये void की जगह आप value को return भी कर सकते हो, so it will not come with a void. Another condition means कि थ्रेड में एक होती है रेस कंडीशन, मतलब कि एक ही प्रोसेस के ऊपर दो दो थ्रेड या तीन थ्रेड वर्किंग कर रहे हैं, तो इट इज avoided with the help of synchronization. The another problem while using a multi-threading is a deadlock. Means one thread calling the another thread and the same thread calling the first thread is nothing but a deadlock. This is the view of a deadlock. थ्रेड 1 ने थ्रेड 2 को कॉल किया एंड थ्रेड 2 ने थ्रेड 1 को कॉल किया, ये चलते ही रहेगा. इट विल एट अ टाइम एक समय में आएगा कि दोनों भी थ्रेड क्या हो गए, लॉग हो जाएंगे. apart of multi-threading, deadlock is what a part of multi-threading can occur when a thread is waiting for object log that is acquired by another thread and second thread is waiting for object that is log acquired by the first thread. Okay, this is the process. ये जो व्यू दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रही है, this is nothing but a deadlock. Since both thread are waiting for each other to release the lock, the condition is called deadlock. ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हम लोग डेडलॉक. प्रिवेंटिंग डेडलॉक, अब प्रिवेंट करना तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सिंक्रोनाइज यूज कर सकते हैं या फिर वेट एंड नोटिफाई मेथड यूज कर सकते हैं कि जब मैं थ्रेड 1 यूज कर रहा हूँ तो थ्रेड 2 वेट में रहे, जब थ्रेड 2 यूज कर रहा हूँ तो थ्रेड 1 वेटिंग में रहे. डेडलॉक कैन बी इजीली अवॉइडेड बाय रिसोर्स ऑर्डरिंग. अगर मैं प्रायोरिटी भी दे दूं तो भी चल जाएगा, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, so it will work according to priority. With this technique, assign an order on all the objects whose lock must be acquired and ensure that the lock are acquired in that order. Example, थ्रेड 1 को मैंने लॉक ए, उसने प्रोसेस ए एंड बी यूज किया, एक थ्रेड बनाया जो रिसोर्स ए और रिसोर्स बी को यूज कर रहा है, तो इसने दोनों को लॉक कर लिया. ठीक है, थ्रेड 2 को क्या किया, वेट फॉर ए लॉक, ए लॉक के लिए वेट किया, और सी लॉक को उसने खुद के लिए लॉक कर लिया. यानी सी रिसोर्स है, जो सी ऑब्जेक्ट है उसको खुद को यानी मीन सेल्फ यूज के लिए उसने यूज कर लिया है, तो उसको लॉक कर दिया उसने. ठीक है, थ्रेड 2 लॉक सी एंड थ्रेड 1 लॉक ए एंड बी. अब मेरा जो थर्ड थ्रेड रहेगा वो क्या करेंगे, अगर उसको तीनों भी प्रोसेस करनी है तो वो तीनों को इसके लिए वेटिंग में जाएगा. ओके, द थर्ड थ्रेड विल बी वेट फॉर ऑल द थ्री प्रोसेस. ये दो तीनों थ्रेड के लिए, तीनों प्रोसेस के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज थ्रेड 1 uses A and B and thread 2 uses C. So till then the use of thread and 1 and 2, thread 2 have to be wait. Otherwise it will again go back and making a deadlock condition. This is the simple way to process to avoid a deadlock or processing a multi-threading process, a multi-threading programming. इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से कैसे बात करता है, विद द हेल्प ऑफ वेट एंड नोटिफाई मेथड. ये वेट एंड नोटिफाई है. वेट मींस you have to wait the things, we have to wait for the process of A and B or A and C or A B C. Another thread have to be notified when all the resource will be available. जब ये A B C available हो जाएंगे मेरे, तो थ्रेड 3 को नोटिफाई होगा कि ये तीनों भी चीजें अवेलेबल है, यू कैन प्रोसीड फॉर दिस एंड मेक अ लॉक ओवर इट. इसके ऊपर लॉक बना लो आप.
लॉक बनाना मीन्स वो प्रोसेस के ऊपर वो थ्रेड का पूरा वर्किंग चल रहा है, दैट इज नथिंग बट अ लॉक. Inter-thread communication or cooperation is all about allowing synchronized thread to communicate with each other. Synchronize means one resource at a time, one thread, one resource at a time. Okay. But उसके बीच में communication करना means one resource, two thread कैसे काम करेंगे? That is nothing but an inter-thread communication. Inter-thread communication use the method wait, notify, and notify all. Notify all means all the thread which is in a वेट मेथड हैव टू बी नोटिफाई ऑल. जब एक से ज्यादा थ्रेड नोटिफाई वेट मोड में रहेंगे तो मैं नोटिफाई ऑल करूंगा, तो सारे के सारे जो थ्रेड वेट मोड पे है वो रनिंग मोड पे आ जाएंगे. दिस differentiate between wait and sleep method, because sleep also have to be means wait the thread or pause the working of a thread. Wait also working for the pausing of a working of a thread. But there is some differences because wait are from object class. ये object class से आया हुआ है. Object class method just like toString and equal and hash code method. So wait method is also coming from object class, while sleep method is coming is sleep is of thread class. Yes, thread class का ही method है. Wait method release the lock. Wait method क्या करता है? लॉक को रिलीज कर देता है. Where sleep method doesn't release the lock. अगर मैं एक थ्रेड है उसको स्लीप में डाल रहा हूँ तो वो लॉक को छोड़ेगा नहीं, वो प्रोसेस पे ही रहेगा. ओके. जैसे ही उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई विल गिव अ मेथड, आई विल गिव जस्ट लाइक दिस sleep. This is what the thread t equals to sleep, and मैंने 1000 मिली सेकेंड का एक टाइम दिया, तो इट विल 1000 मिली सेकेंड के लिए वो वेट करेगा एंड अगेन स्टार्ट प्रोसेसिंग. तो इट विल नॉट रिलीज द लॉक. थ्रेड वन इज इन मतलब जो लॉक है वो T1 के पास ही रहेगा, T के पास ही रहेगा. लॉक इज एट T. T के पास में ही वो लॉक रहेगा. बट व्हेन वी यूज T डॉट वेट मेथड, जब मैं T डॉट वेट मेथड यूज करता हूँ तो वी डोंट हैव टू पुट अ टाइम ड्यूरेशन. इट विल वेट एंड लॉक विल बी रिलीज. मतलब अब T2 है, कोई थ्रेड है वहां पे T1 के अलावा, T के अलावा जैसे R कोई थ्रेड है, तो इट विल गेट अ नोटिफिकेशन या फिर नोटिफाई मिल जाएगा उसको. so R थ्रेड विल बी वर्किंग नाउ. T थ्रेड स्टॉप हो गया है, R थ्रेड वर्किंग स्टार्ट कर देगा. Third is what? It's a non-static method. It's a static method. तो पैरा है. It's a static method. Should be notify और notify all. जैसे मैंने यहाँ R method को notify किया कि आप work कर सकते हो, तो वैसे ही notify all. अगर और भी threads है, number of threads more than one threads, तो we will use notify all. After a specified time amount of time sleep is completed. ये जैसे मिलीसेकंड कंप्लीट होगा 1000 मिलीसेकंड, T1 स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और वो रिलीज कर देंगे अपने वर्क को. So have some hands-on code. So I will give all the example whatever we read now. जो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्रामिंग किए, I will use a programming means Eclipse का यूज कर रहा हूँ मैं. I think all have visibility. सभी लोग देख सक रहे हो ना. Basic example of a thread. I use a new class. एक नई क्लास बना रहा हूँ. Finish. You can use your own editor means आप वो वही यूज करोगे. Simply main method
for calling the values. For basic means बेसिक प्रोसेस पहले चेक कर लेते हैं बेसिक प्रोसेस कैसा होता है जैसे मैंने एक फॉर लूप लिया एंड आई विल इनिशियलाइज द फॉर लूप फ्रॉम I equals to 0 to I is less than 100 okay and I is plus plus and I will print here whatever I have getting an object as system.println I but I will I but I will not print as println I will give as this and it will give me this टैप टी मतलब डिस्टेंस में वो प्रिंट करते जाएगा व्हाट हैपन आई इज एंड सॉरी एंड is I'm audio means is my screen is visible all my program is visible to you I try to make it fine so ये print करेगा and after for loop it will come with another for loop another for loop I will use 3 for loop I will initialize this 101 and go to 200 it will go to 201 to 300 ओके ये तीन अलग अलग प्रोसेस है जो वर्किंग करेगा एंड इट विल गिव एन आउटपुट आई विल यूज प्रोसेस 3 प्रोसेस 2 कितना कॉपी पेस्ट करती हूँ process 1 okay what will be the output it will give an three different for loop चलाएगा वो and it will give an output but okay we will see first कि क्या output आता है so we will modify our answer coding according to that कुछ ये इस तरीके से आंसर दिया है इसने प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 यहाँ पे एलन था इसलिए इस तरीके से आ गया so three process 1 2 and 3 okay process 1 having from 0 to 10
एंड ये 0 to 100 तक का प्रिंट किया इसने वन बाय वन. इफ आई गो विद मीन्स ये हो गया मेरा सिंगल प्रोसेस, एक प्रोसेस वन बाय वन प्रोसेसिंग कर रहा है. व्हेन वी गो विद द थ्रेड मेथड, मतलब मैंने अगर थ्रेड इंप्लीमेंट करूंगा, सो इट विल कम विद अनदर वे ऑफ प्रोसेसिंग, ये अलग ही तरीके से वर्क ही करेगा. ओके, सो आई विल मेक class process1 extend thread okay, let's run method. एंड रन मेथड के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसको कॉल कर ले रहा हूँ. I will use this method here. Process1 ये प्रोसेस थ्रेड बना दिया हमने थ्रेड का क्लास के लिए, न्यू थ्रेड. Assigning a value to it. Assigning a value to it, thread t equals to, and this is nothing but a thread1. I will call as thread1. जो इसको कॉल करेगा I will make an class of new object, new process. Yes. Equals to. Okay. तो ये मेरा पहला प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड आई विल रन विद दिस. सो सी, थ्रेड 1 पहले या थ्रेड 2 पहले कॉल हो गया, थ्रेड 1 बाद में कॉल हो गया. ओके, आई विल गिव दिस. सो जो पहले प्रोसेस चल रही थी, मीन्स एक सिंगल प्रोग्राम बाय वन तीन प्रोसेस तीन फॉर लूप को रन कर रहा था. अब देखो यहाँ पे रैंडमली कोई भी, अब आप कितने बार भी रन करोगे इट विल एग्जीक्यूट एनी वे और साइमल्टेनियसली एट अ टाइम. एक समय में तीन चार चीजें वर्क कर सकता है. ये पहले उसने प्रोसेस 2 को कॉल कर लिया, देन प्रोसेस 1 को कॉल किया, फिर प्रोसेस 3 को कॉल किया, एंड इन प्रोसेस 1 and 2 it will call the values, other values also. प्रोसेस 3 में इसने यहाँ पे ये वैल्यूज लेके आया एंड प्रोसेस 3 में प्रोसेस 2 का वैल्यू लेके आ गया इसने. अगर मैं फिर से रन करता हूँ इट विल गिव अनदर, मींस डिफरेंट आउटपुट देगा. देखो हर बार डिफरेंट आउटपुट दे रहा है ये 3 2 1 एंड कॉलिंग ऑफ वैल्यूज. नाउ आई कॉल द सेकंड मेथड और सेकंड क्लास बना लेता हूँ, क्लास प्रोसेस
implement. Right. Okay, void method is implemented, मतलब रनेबल के अंदर में void method ऑटोमेटिकली होती है, इसलिए उसने मेरे को रन मेथड पहले से ही दे दिया। सो आई विल कॉल माय सेकंड प्रोसेस है, जो सेकंड प्रोसेस है इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। And this second process, okay, it's not new, this is not runnable, okay. सो ये मैंने सेकंड क्लास बनाई जिसमें रनेबल इंटरफेस को मैंने इंप्लीमेंट किया। देर आर टू वे टू मेकिंग अ थ्रेड क्लास, एक दो तरीके से हम लोग थ्रेड बना सकते हैं, एक एक्सटेंडिंग करके और सेकंड है इम्प्लीमेंट करके। तो इम्प्लीमेंट करके मैंने अभी बनाया है, एक्सटेंड करके पहले ही बनाया था। तो रन मेथड ऑलवेज इन्वोक, अगर रन मेथड मैं नहीं लिखता हूँ और डायरेक्टली ये सारी चीजें स्टार्ट मेथड में डाल देता हूँ, स्टार्ट मेथड में डाल दूंगा, सो इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू अ, ये कैसा वर्क करेगा, एक नॉर्मल मेथड की तरह वर्क करेगा। जो नॉर्मल हमारी मेथड होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशन मेथड होती है उस तरीके से वर्क करेगा। इज नॉट वर्क अकॉर्डिंग, मींस ये थ्रेड के तरीके से वर्क नहीं करेगा। आई विल यूज प्रोसेस टू इक्वल्स टू p2 प्रोसेस। ओके, ये सेकंड थ्रेड को मैंने स्टार्ट किया। आई विल रन, ये जो आउटपुट आया ये इसके, देखो अभी और कुछ आउटपुट्स आएगा। वन टू वन, पहले वन प्रोसेस कॉल किया, फिर थर्ड प्रोसेस कॉल किया, फिर सेकंड प्रोसेस कॉल किया, ओके। और वो प्रोसेस के अंदर भी वो साइमल्टेनियसली अभी एक एक करके नहीं कर रहा है, ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस वन के ऊपर भी काम कर रहा है, प्रोसेस टू के ऊपर में भी काम कर रहा है, ओके। सो थ्रेड हैविंग वन नंबर ऑफ थ्रेड, और जैसे अभी मैंने दो थ्रेड बनाया एंड मेन थ्रेड इज वर्किंग, सो यहाँ पे तीन थ्रेड काम कर रहे हैं, ओके। तो तीनों थ्रेड एट अ टाइम वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज साइमल्टेनियसली वर्किंग। Yes, it's simultaneously three working loop और three thread working at a time. Okay, so देखो यहाँ पे ये जो आउटपुट भी है, ये आपके फॉर लूप के जो आउटपुट्स थे पहले इनिशियल में कैसा था, पहले 0 to 100 था, फिर 1 to 100, 1 से लेके 200 तक था, फिर 201 से लेके 300 तक था। तो अभी देखो ये वैल्यूज जो है ये भी रैंडमली चेंज हो रही है। रैंडमली चेंज मतलब जो भी एग्जीक्यूशन वो पहले यूज कर पा रहा है वो यूज कर रहा है वो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ थ्रेड प्रोसेस, ये थ्रेड का वर्किंग हो गया आपका। मैंने एक थ्रेड का न्यू क्लास बनाया, दिस इज नथिंग बट अ इनिशियलाइजेशन ऑफ योर थ्रेड, दैट इज न्यू। देन इट इज नथिंग बट वो थ्रेड को कॉल करने के बाद मेरा ये रनेबल स्टेट में आ गया, रनेबल स्टेट। एंड देन प्रोसेस इनसाइड, ये जैसे ही रनेबल में आता है तो ये प्रोसेस किसको कॉल करेगा, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर की, दैट इज नथिंग बट अ रनिंग प्रोसेस, ओके। जैसे रनिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तो ये बाहर आ गया मेरा, ये सारी चीजें जब बाहर आ जाएंगी यानी ये प्रोसेस फॉर लूप के बाहर, तो दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनेशन, दिस इज नथिंग बट टर्मिनेशन ऑफ योर थ्रेड, ये थ्रेड का टर्मिनेशन हो जाएगा, ओके। अब अदर मेथड जो है इसी के ऊपर की एक थ्रेड एट अ टाइम वर्क करना चाहिए, तो वी कैन गो विथ टी थ्रेड वन डॉट ज्वाइन, ठीक है। जब तक का थ्रेड वन कंप्लीट नहीं होता तब तक का थ्रेड थ्री काम नहीं करना चाहिए, देख लो। तो ये मेरा प्रोसेस हो गया। आई हैव टू गिव एन इंटरप्ट एक्सेप्शन, ये थ्रो एक्सेप्शन देखना पड़ेगा मेरे को। यस, इट्स वर्किंग फाइन।
तो अब मेरे को क्या करना है कि जब तक प्रोसेस 1 कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्रोसेस 3 वर्किंग में नहीं आना चाहिए, यूज नहीं है, नहीं कम प्रोसेस या फिर स्टार्ट नहीं होना चाहिए प्रोसेसिंग। तो आई विल गिव ज्वाइन मेथड। ज्वाइन क्या करेगा कि जब तक प्रोसेस 1 थ्रेड 1 प्रोसेस नहीं करेगा तब तक वो कंप्लीट थ्रेड 3 को कॉल नहीं करेगा। देखो यहाँ पे प्रोसेस 1 और 2 रैंडमली यूज है, ठीक है। सो इट विल गिव ये थ्रेड 2, ये थ्रेड 1 का आउटपुट है, देखो, ठीक है, ये थ्रेड 1 आउटपुट। सो थ्रेड 1 एंड 2 वर्किंग मतलब जब तक कंप्लीट नहीं होते, थ्रेड 1 जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक थ्रेड 3 काम नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को थ्रेड 2 भी जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं थ्रेड 3 को यूज नहीं करना है। सो आई विल गिव दिस ज्वाइनिंग बिफोर इनिशियलाइजिंग, और जैसे मेरा थ्रेड 3 काम नहीं करना है यानी स्टार्ट करेगा उससे पहले मैंने ज्वाइन लगा दिया। तो ये क्या करे, ये क्या बोल रहा है कि टिल माय वर्क इज नॉट completed we will not start you। ओके, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं आपको स्टार्ट करने नहीं दूंगा। तो ये हो गया मेरा ज्वाइन मेथड। अब आउटपुट ऐसा आएगा कि थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 देन थ्रेड 3, इट इज व्हाट गिविंग। ओके, वी विल गेट द नेम ऑफ अ थ्रेड। जो करंट थ्रेड था उसका नेम जानने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं दैट थ्रेड 2 SYSOUT करंट थ्रेड नेम को जानने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस साइन प्लस T2 या T1 डॉट करंट थ्रेड। ओके, इट विल गिव द आउटपुट ऑफ योर T2 का जो भी गेट नेम। द करंट थ्रेड इज मेन थ्रेड। ओके, T2 के अंदर भी मेन थ्रेड कॉल ही हो रहा है। वी नॉट गिव द नेम एज, T2 का हम लोग को कोई नाम नहीं दिया इसलिए वो main thread. If I give the name as or set priority, we can set priority also। अगर मैं ज्वाइन को हटा के वेट भी कर सकता हूँ, T1 dot wait। अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस मेन थ्रेड एक्सेप्शन। व्हाट इज द एक्सेप्शन, I have to go with this setting। यहाँ पे इंटरप्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इट विल टेक अ टाइम। जो थर्ड प्रोसेस में आया उसके लिए टाइम लगा, मैं और इसको टाइम बढ़ा देता हूँ, इसको 5 सेकंड कर देता हूँ। ओके, थर्ड थ्रेड जब थर्ड थ्रेड जब प्रोसेस में आया, क्योंकि थ्रेड T1 जो था वो स्लीप मोड में चले गया था, इसको हटा सकते हैं। देन आपका सेट प्रायोरिटी आ सकता है, वी कैन गिव टी प्रायोरिटी के हिसाब से भी आप वर्किंग करवा सकते हो ऊपर में। इसकी प्रायोरिटी सेट करते थे T1 डॉट सेट प्रायोरिटी।
let's set daemon also. We cannot set daemon अगर मैं यहाँ करता हूँ तो it will not work. Yes, true. तो ये मेरे को error देगा. ओके, ये error क्यों देगा? Why it will give an error? Because I will use a set daemon method. मैंने set daemon method कहाँ यूज किया? start method के बाद में किया. अगर मैं इसको हटा के ऊपर में डाल देता हूँ यहाँ पे, and then I work, it will work as a demonstrate. Okay, ये demonstrate की तरीके से work करेगा. It will not give an error. Always the start method. Start method के ऊपर में ही रहना चाहिए. ठीक है, start method से पहले ही इसको demonstrate को set करना चाहिए. ओके, अब यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो या फिर यहाँ पे चेक कर सकते हो. SYSOUT डेमोन प्लस T1 dot. We can check is the live condition also. Run method. It's process. It's giving an output. वो जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया कहीं ना कहीं तो प्रिंट हुआ होगा. क्या हुआ? Happen. इधर क्या? Yes, T1 is a demonstrate. It's giving a true. Set demon and set parity. We can set parity also. इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए. And T1 dot set parity. Set parity. 5. And I will give T2 dot set parity as set parity as कितनी दे इसको 10 दे देते हैं. Let's check what will be the output. क्या करेंगे? 2 पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए as according to the priority. नहीं, it will not work according to that. सेट प्रायोरिटी ये पहले ही एग्जीक्यूट कर लिया है इसने. अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के कॉपी now I think so it will execute according to the code. ये फिर according to the code work करेगा. Something wrong. 16. You know what happened? Process double execution नहीं. Okay, if I set the priority, process T1 execute first. Okay, and then process 3 will be executed and process 1 afterward. Because I will execute the priority. मैंने priority set किया T1 की 5, तो ये बाद में print किया इसने. Execution according to that. Getting all this, the prospect of a thread.
This is what a simple example I try to explain a thread methodology, कैसा thread work करता है. We have done with a multiple thread. एक साथ हम लोगों ने multiple thread के ऊपर में भी काम किया. And whatever we come with the PPT, I have things we have covered lot of things. ठीक है. Come back to our PPT. We have done this. Applets. Now the next process, applets. Thread में और कोई भी problem है, you can ask me later on. Applets. What is applet? Applet is nothing but a program which is embedded in a web page. Web page के through embedded करके हम लोग dynamic content बना सकते हैं. And it run inside the browser and work at a client side. Client side में work करने के लिए ये use हुआ. ठीक है. पहले क्या होता था कि जावा में सिर्फ हम लोग server side coding या फिर हम लोग सिर्फ एक ही जगह में कोड कर सकते थे. To make that code dynamically available in another computer without making the system available, ना मेरे को सिस्टम लेके जाना ना पड़े या फिर मेरे को वहां पे इंटीग्रेटेड ना करना पड़े, तो तब W3 स्कूल ने W3 ने ब्राउजर तो लेके आ गया था. नेटफ्लिक्स वो नेट वाला क्या था वो नेटफ्लिक्स या समथिंग लाइक दैट. सो तो उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लिखना था. तो वो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हम लोगों ने जावा ने यूज किया दैट्स एप्लेट. So applet is a special type of program that is embedded in a web page to generate the dynamic content. It run inside the browser and work at the client side. So advantage of applets, it's work at client side, so less responsive time. अगर जो चीजें क्लाइंट साइड में वर्क कर रही है तो उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए कम टाइम लगेगा, बिकॉज जो डेटा हमारा सर्वर साइड से आ रहा है उसको डेटा लेके आने की जरूरत नहीं, उसके पास ही पहले से डेटा अवेलेबल रहेगा. ओके, सो इट इज less responsive, means it is more faster than a normal project or a normal program. It is secure because we have embedded the code in Java. Java में हम लोग कोड लिखते हैं और उसको HTML में कॉल करते हैं. It can be executed by browser running under many platforms including Linux, Windows, Mac OS, and etc. Some drawbacks: plugin is required at a client browser to execute applet. Plugin चाहिए रहेगा जब हम लोग applet को client side में रन करते हैं, तो that is what one drawback applets have. जैसे हम लोगों ने थ्रेड की लाइफ साइकिल देखी है वैसे ही एप्लेट की लाइफ साइकिल है. एप्लेट हैविंग इनिशियलाइजेशन, इट्स इन्वोक वन ओनली वंस, एक ही बार इन्वोक होता है. ठीक है. देन स्टार्ट मेथड, इट्स इन्वोक द इन्वोक after the init method or a browser is minimized, it is used to start the applet. Then stop method, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोसेस हो गया, अब सारी चीजें प्रोसेस होने के बाद बंद करनी है, स्टॉप करनी है, so we can go with stop method. Applet is stop or browser is minimized. And then destroy. Okay, it is used to destroy the applet. It is invoke only once. ये भी एक ही बार होता है, जैसे initialization once वैसे ही invoke भी one एक ही बार. And then paint is used for graphic process. So graphic process जो भी हम लोगों को ब्राउजर के अंदर में प्रिंट करवाना है या लिखना है, that's come with the paint. Okay, paint method के थ्रू यूज होता है. Okay. Okay, so we are in life cycle of applets. The first method is init. Init is nothing but initialization of applet. Then we have to work with it with the help of start method. If we have to stop the process in between that, we will go with the stop method. If we have to destroy the method, then or close the method, then we will use a destroy method. Programming level में हम लोग applets अभी use नहीं करते, because there is another बिग फ्रेमवर्क्स और अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, जैसे कि स्प्रिंग हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रिंग के अंदर में आता है, या फिर हमारा ये सर्वलेट जेएसपी सर्वलेट हो गया, जेएसएफ हो गया, स्विंग हो गया. सो वी विल नॉट यूज एप्लेट, बट इन अ जावा जब इनिशियलाइजेशन हुआ था जावा का, एप्लेट इज द बिग पार्ट टू प्ले रोल ऑन इट. कि कुछ चीजें जो ब्राउजर पे रन करनी है, हमें जो आउटपुट दिखाना है, फॉर दैट थिंग वी हैव टू यूज एप्लेट. ऑब्जेक्ट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग या फिर ग्राफिक क्लासेस, या फिर हमें इमेजेस डालनी है, जो भी प्रिंट करवाना है, कोई फॉर्म टाइप करवाना है, सो वी विल यूज दैट पेंट मेथड.
So this is the life cycle of your applet. First initialize, then start, then paint it, stop and destroy. This is how the process is going. Okay, ये paint method start के बाद use होती है. How to run a applet को रन करने के लिए करना ही है कि एक जावा के क्लास फाइल बनानी है और जावा की क्लास फाइल में जो भी मेथड्स है पेंट मेथड है उसको यूज करके पेंट करवाना है. देयर आर टू वे टू रन अ मेथड अपलेट्स. दो वे है, एक हम लोग ब्राउजर में रन कर सकते हैं या फिर एक जावा एप्लेट मींस एप्लेट व्यूवर में रन कर सकते हैं. दैट इज एप्लेट व्यूवर फॉर अ टूल फॉर टेस्टिंग पर्पस और एचटीएमएल फाइल एक एचटीएमएल फाइल में भी रन कर सकते हैं. तो मैंने जो एग्जांपल लिखा है वो एचटीएमएल फाइल का है. सिंपल मैंने एक जावा का क्लास फाइल बनाया है. ये मैं पेंट मेथड का यूज किया है. क्लास एक्सटेंड एप्लेट, ये एप्लेट का क्लास को एक्सटेंड किया है. पेंट मेथड में मैंने ऑब्जेक्ट यूज करके ड्रॉ स्ट्रिंग बनाई है जो 150 टू 150 का स्ट्रिंग रहेगा एंड वेलकम उसके अंदर में आउटपुट रहेगा. तो जैसे ही मैं इसको HTML में कॉल करना था, HTML में टैग है applet code and giving my first class name first dot class and there whatever the representation you want. ये ब्राउजर का साइज बन जाएगा. ओके, 300 and 300 height and width. So it will give an output welcome inside the box. ये इस तरीके से बॉक्स बनाएगा. इस तरीके से बॉक्स बनाएगा एंड यहाँ पे वेलकम लिख देगा. And this is come into a browser. ये ब्राउजर पे आएगा. Okay, whatever the browser you check. ब्राउजर नहीं, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखा होगा. Okay, just like this an example of your applet. Nothing more in it. ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, but for understanding purpose की applet करके भी कुछ है, कुछ दुनिया में है जावा के. So that's why कम मतलब ये process use हुआ है हमारे syllabus में include करने में आया है. Now the big part, Swing GUI. Swing is nothing but a process जो हम लोग applet में देख रहे थे. Applet AWD का component नहीं है. It is a component of yes, it's run in Eclipse also. आप Eclipse में भी रन कर सकते हो. As we included, जैसे हम लोगों ने मैंने बताया ना दो तरीके से रन कर सकते हैं. तो आप ये एप्लेट व्यूवर के थ्रू, Eclipse में एप्लेट व्यूवर होता है तो हम लोग वहां पे रन कर सकते हैं उसको. Okay, fine. Swing GUI is nothing but a graphic user interface. What is Swing? Part of a Java Foundation classes. जब हम लोगों को अभी तक सारी चीजें हम लोग ब्लैक विंडो में देखिए. ब्लैक विंडो में मतलब कि हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट से रन किया और वो आउटपुट दिया मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में ही. ओके, सो मेक दैट क्लियर इनटू अ यूजर इंटरफेस कि मैं यूजर इंटरफेस के थ्रू प्रिंट करूं या फिर इनपुट लूं आउटपुट दूं. तो एट दैट टाइम Java Swing come into picture. Okay, it provide a rich set of graphic user interface. GUI is nothing but a graphic user interface. It's a graphic user interface. Okay, so interfacing a normal user to a system is nothing but a graphic user interface who having a different checkbox, labels और whatever we see in a web page में होता है ना एक नॉर्मल फॉर्म फिल अप करते हैं हम लोग उसमें जो रहता है इनपुट आउटपुट. सेम वे में ग्राफिक यूजर इंटरफेस वर्क करता है. वही ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है. सो स्विंग हैविंग अ great set or a rich set of a GUI component used to create a Java program with a graphical user interface.
फीचर ऑफ जावा, जावा लुक एंड फील्स, जावा को यानी जो भी हम लोग आउटपुट या फिर ग्राफिकल जीयूआई बना रहे हैं उसके ऊपर में लुक एंड फील देने के लिए स्विंग यूज होता है, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड बैक एंड टू फ्रंट एंड लेके आने के लिए, या फिर या फ्रंट एंड बैक एंड कर सकते हैं, सर्वर क्लाइंट का कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन internalization and localization is the process with the help of swing, okay. Accessibility, system tray icon support. System tray icon support is nothing but a menu, okay. Just like ये menu आ रहा है ना, ये graphic कैसा दे रहा है हमें, this is nothing but a menu we are getting, okay. So it will give a system tray icon support, and you can drag and drop with the help of IDs का use करके आप उसको drag and drop कर सकते हो. Java Swing component, there are top level container, general purpose containers, special purpose container, basic controller, and a uneditable information display. Okay, uneditable information display just like a labels or a और क्या हो सकता है जो जिसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, जो पहले से लिखा होता है तो वो लेबल में लिखा होता है तो हम लोग उसको एडिट नहीं कर सकते, या फिर जो प्रोसेस शुरू है तो हम लोग बार बनाते हैं, रनिंग बार, प्रोग्रेस बार बोलते हैं उसको, तो प्रोग्रेस बार इज नॉट एडिटेबल, इट विल एग्जीक्यूटेड बाय देयर ओन और वो बैकएंड से प्रोसेस होता है. इंटरएक्टिव डिस्प्ले ऑफ हाईली फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन, यस. सो वी विल गो विद द टेबल कंटेनर फर्स्ट. टॉप लेवल कंटेनर, टॉप लेवल कंटेनर में विंडो आता है एंड डायलॉग्स आती है, फ्रेम्स आती है. ये तीनों भी चीजें मैं आपको आउटपुट में बताता हूँ, ठीक है. जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यानी प्रेजेंटेशन खत्म होता है, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल गो विद द प्रेजेंटेशन कि कैसे वो स्विंग में आउटपुट लेके आता है, ओके, यानी स्विंग कैसे वर्क करता है. स्पेशल पर्पस कंटेनर, इंटरनल फ्रेम्स, लेयर्ड पैन, root pan, okay. And these are the, this is the example of your window. ये windows के example है, ये dialog box है, okay. ये dialog box, ये frame and ये window. Frame demo is your window in an question, would you like an green egg and hams. So it is nothing but your dialog box which asking for you put a dialog and a window. So special purpose container also there. So this is special purpose container. स्पेशल पर्पस कंटेनर हैविंग अ लेयर्ड, ये एक के नीचे एक जो लेयर्ड फ्रेम आ रही है ये है, ये इंटरनल फ्रेम्स है, वन फ्रेम के अंदर अनदर फ्रेम्स, एंड द रूट पैन हैविंग दिस रूट पैन. ये जैसा दिख रहा है ना यूआई, ये सेम हम लोग बनाएंगे फिर. फॉर मेकिंग अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन वी विल यूज अ स्विंग, ओके. स्विंग यूज करने वाले हैं हम लोग. अभी अगर आपको 100% नहीं भी समझ में आ रहा है, बट टेक अ लुक ऑन इट, देखो आप, जब हम लोग उसको प्रोग्रामिंग में करेंगे यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्विंग वर्क्स, कैसे ये जीयूआई बनता है. वी हैव टू सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर बैकएंड में कोडिंग करके भी. बेसिक कंट्रोलर, बेसिक कंट्रोलर में मेन्यू आ जाते हैं, देन आपके इनपुट आउटपुट चेक बॉक्स आता है, लिस्ट आती है, ठीक है, फ्रेम्स आती है. दिस इज द बेसिक कंट्रोलर्स. buttons, combo box, this is the combo box, this is the combo box we have, and list presenting a list, this is the list menu. We will go with the menu, a menu, another menu, a menu, a sub menu is this, a menu list is there. So basic control function inside the swing. Uneditable information display just like label or a progress bar. Interactive display of higher formatted information, ये होगी मेरी क्या लेबल, टेक्स्ट ओनली लेबल और इमेज एंड अ प्रोग्रेस बार. दिस इज इंटरएक्टिव डिस्प्ले ऑफ हाईली फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन. आप डायरेक्टली कलरिंग चेंज कर सकते हो कोई लेबल्स का या वैल्यूज का, उसका साइज चेंज कर सकते हो, या फिर उसको कोणते जावा फॉर्मेट में नहीं, सॉरी, फॉन्ट फॉर्मेट चेंज करना, यू कैन चेंज द फॉन्ट फॉर्मेट आल्सो. दिस इज व्हाट अ स्विंग इज. स्विंग में हम लोग एक्शन
मीन्स जावा लेआउट मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि एक्शन कैसे परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ इवेंट. So we have border layered, row layered, and this Java event handling and Java layout management. ये ग्रिड लेयर, फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड बैक लेआउट, ये सारी चीजें हम लोग स्विंग में यूज करते हैं फॉर मेकिंग द व्यू पर्पस. जब हम लोगों का आउटपुट आना चाहिए तो वो कैसे होना चाहिए, उसके लिए यूज करते हैं ये सारी चीजें. ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट एंड एक्शन बटन. जैसे मैंने कोई एक्शन बटन पे क्लिक किया तो उसके पीछे में जो भी एक्शन है वो कैसे परफॉर्म होगा, दैट्स कम इनटू एक्शन लिस्टनर. ओके, तो एक्शन लिस्टनर के अंदर में लिखा जाता है. एंड एक्शन लिस्टनर में इज नथिंग बट अ जावा कोड. जो भी कोड है वो पूरा जावा में होता है. टाइप ऑफ इवेंट लिस्टनर, ये जो इवेंट लिस्टनर है दैट इज नथिंग बट एक्शन लिस्टनर. so there are window listener, mouse listener और mouse motion listener, component listener. माउस मोशन लिस्टनर मीन्स जैसे मैं माउस को ऊपर उसको एचोरिंग करता हूँ या ड्रॉप करता हूँ, एचोरिंग ड्रॉप होता है या क्लिक करता हूँ, दैट इज कम इनटू अ माउस मोशन लिस्टनर. विंडो लिस्टनर मीन्स एक विंडो को कॉल किया तो उसके बैकएंड में क्या प्रोसेस शुरू होने वाली है, दैट इज नथिंग बट अ विंडो लिस्टनर. Implement an event handler. Implement the matter in a listener interface to handle the event conclusions. You can use any helpful tool out there that are for Java development like Eclipse IDE or NetBeans IDE. Mostly we will use NetBeans IDE. It is more beneficial for Swing. ठीक है, एक प्रोजेक्ट कितने सिंपली और कितने इजीली बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ NetBeans, आई विल टेल यू. ओके, बट पहले हम लोग जो बाकी का पार्ट है वो कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग Eclipse में आते हैं. We will see all sync component example while doing desktop application using NetBeans. Yes, whatever I tell you. Now come with the JDBC. देखो हम लोगों ने अभी तक थ्रेड पढ़ लिया, थ्रेड के बाद एप्लेट पढ़ा. एप्लेट में ज़्यादा कुछ नहीं था, एक ब्राउजर के ऊपर में हम लोग जावा कोड को लिख सकते हैं, वो बताने के लिए एप्लेट यूज हुआ है. ठीक है, एक स्विंग इसलिए यूज हुआ है कि हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं कि जो इनपुट आउटपुट है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो हम लोग स्विंग का यूज कर सकते हैं. स्विंग से पहले AW कंपोनेंट था, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट. बट एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट को ही एडवांस वर्जन में लेके आ गया तो वो स्विंग बन गया है. ओके, so we have covered three main topics. Now the fourth topic is JDBC, that is Java development, Java database connectivity. So it will give a database connectivity between your Java application to a database. अब मैंने जो वैल्यू है वो सेव करना है तो मेरे को सेव करने के लिए JDBC का यूज करना ही पड़ेगा. ओके, JDBC stand for Java database connectivity. JDBC is a Java API to connect and execute a query with database. अब database की query कौन सी होती है? Select star from table name, insert into table name, update into table name, whatever you can do with the SQL. या फिर आपने MySQL या फिर Oracle पढ़ा है तो उसके अंदर में जो भी आपने डेटाबेस की क्वेरीज की है उसको यूज करने के लिए, उसको एम्बेडेड करने के लिए मेरे जावा एप्लीकेशन में मैं JDBC का यूज करता हूँ. ओके, JDBC API uses JDBC driver to connect with the database. There are 4 drivers, 4 ड्राइवर्स है जिसके थ्रू हम लोग JDBC को कनेक्ट कर सकते हैं. JDBC ODBC ड्राइवर, नेटिव ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थीम ड्राइवर. JDBC ODBC driver mostly use. नेटिव ड्राइवर इज व्हाट वी कॉल C ड्राइवर. C में जो पहले कोड हुआ था वो नेटिव ड्राइवर में बोल सकते हैं. नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर कम्युनिकेटिंग बिटवीन अ नेटवर्क एंड थीम ड्राइवर. each having their own service and uses. According to uses आपको जो यूज करना है कर सकते हो, but mostly we will use JDBC ODBC driver. Okay, driver is nothing but an agent to make the things happen. ये जावा एप्लीकेशन से कोड लेके मेरे ओरेकल में कम्युनिकेट करना चाहिए तो वो चीज को यूज करने के लिए, वो चीज कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट को बना कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर यूज होते हैं. ओके, ड्राइवर के ऊपर मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, नहीं ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, बट यू कैन रीड इट आउट. बिफोर JDBC, ODBC API was the database API to connect and execute the service with the execute the query with the database. But ODBC API uses ODBC driver, which is written in C language, which is platform dependent and unsecure. So पहले JDBC से पहले क्या था, ODBC था.
लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, JDBC ODBC का डायरेक्ट कंपाइलेशन इन्हें कंबाइन किए, तो अभी क्या हुआ कि वो सिक्योर भी बन गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो गया और जावा से रिलेटेड भी हो गया. दैट इज व्हाई Java has defined its own API, JDBC API, that uses JDBC driver written in Java language. We can use JDBC API to handle database using Java program and can perform the following activities: connect to database, execute queries, update. ये जो मैंने चीजें आपको पहले बताई ना कि JDBC के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें, retrieve the result receiving from the database. जब हम लोग जावा और MySQL का कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक API या फिर एक सॉफ्टवेयर बन सकता है, जस्ट लाइक एन सॉफ्टवेयर ऑफ होटल मैनेजमेंट और स्कूल मैनेजमेंट, वॉट एवर द मैनेजमेंट यू कैन डू. ओके, JDBC कनेक्टिंग विद द 5 स्टेप. JDBC को यूज करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए 5 स्टेप लगती है. दैट इज register the driver first, get the connection, create a statement, execute the query and close the statement. In coding format I have do this. मैंने पहले मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में मैंने class dot for name, this is used for load the class driver, this is nothing but a register driver. I use a MySQL JDBC driver. आप यहाँ पे दूसरे ड्राइवर भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे Oracle ड्राइवर भी यूज कर सकते हो, Oracle ड्राइवर भी यूज कर सकते हो, MongoDB भी यूज कर सकते हो, MongoDB और क्या है, Oracle MySQL DB2. तो we can go with this. ठीक है, ये class dot for name क्या करता है कि मेरे ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करता है. तो यहाँ पे मैंने MySQL का JDBC ड्राइवर को रजिस्टर किया. देन आई मेक अ गेट कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर मैनेजर. ठीक है, जो मेरा ड्राइवर मैनेजर है उसके थ्रू मैंने गेट कनेक्शन किया. आई विल पास माय URL 3306 इज द पोर्ट नंबर. ठीक है, एंड रूट एंड दिस इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो यहाँ पे ये वैल्यूज कैसा आता है, URL. ठीक है, देन पोर्ट नंबर, URL, then port number, then your database name, then your comma separated username, root is your username, and comma your password of your database, because without password it will not execute और वो access नहीं कर पाएगा, है ना. So this is how we go with this. Okay, ये जो values है ये मेरा URL है, then ये पोर्ट नंबर, ये डेटाबेस का नाम सुनोन, रूट एंड रूट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड. ये गेट कनेक्शन के बाद मैंने क्रिएट कनेक्शन का एक ये जो मैंने मेरा ऑब्जेक्ट बनाया था गेट कनेक्शन का, उसका यूज करके मैं क्रिएट स्टेटमेंट लिखता हूँ. एंड क्रिएट स्टेटमेंट में मैं क्वेरी पास करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ओके, ये क्रिएट जो क्वेरी है, ये क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉल किया. ये ऑब्जेक्ट को कॉल करने के बाद, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कॉल करने के बाद मैंने जो वैल्यूज है मेरे रिजल्ट सेट में ले लिए. ठीक है, एग्जीक्यूट द क्वेरी, ऑल द आउटपुट कम इनटू रिजल्ट सेट, और रिजल्ट सेट में जितना भी वैल्यू है वन बाय वन टिल द वैल्यू हैविंग व्हाइल लूप. व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन तब तक का चलेगा जब तक का मेरे RS में वैल्यू रहेगा. RS कंटेन अ वैल्यू टिल देन while loop will execute and print the value of get int 1, string 3, whatever the जो भी string उसके अंदर में included है. Step 5, close the connection, and whatever the output. This is a simple basic example of your database connectivity, and this is the what a step required. Register the driver, get connection, create statement, execute the query and close connection. अब ये चीजें कहाँ यूज होती है, ये चीजें हर एक प्रोग्राम में यूज होती है. आप छोटा सा छोटा बेसिक एग्जांपल, आप इंडस्ट्री में छोटा सा एग्जांपल या यूटिलिटी भी बना रहे हो, तो यू हैव टू डील विद द डेटाबेस, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ सेव है, यूजर की या फिर कस्टमर की डेटाबेस में सेव है. To get the value from a database, you have to connect the database, you have to register the database, you have to create a query, execute a query, get the result set and print whatever you required or manipulate whatever you required. Okay, so these are the most important part of your Java program. मतलब कि Java programming करने के लिए
डेटाबेस से डील करने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज नथिंग बट अ बैक एंड कोडिंग। जो बोलते हैं ना बैक एंड कोडिंग कौन करता है, दीज आर द बैक एंड कोडिंग। ओके, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती है। एंड we can use in other domain also, not in a developer, you can do with the testing also। testing में जब हम लोग selenium का कोड करते हैं और कोई चीजें हमें डेटाबेस से रिट्रीव करनी है, एट दैट टाइम आल्सो वी कैन गो विद दिस क्लास आल्सो। मतलब कि जेडीबीसी का यूज करके वो रिट्रीव करता है डेटा एंड पुट इनटू अ सेलेनियम टूल। सेलेनियम के टूल में वो यूज करता है एंड देन अपडेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस वैल्यू। ये वैल्यू लेके आने, ये वैल्यू लेके आ गया है मेरे पास, है ना, गेट स्ट्रिंग 2, गेट स्ट्रिंग int 1, गेट स्ट्रिंग 3। ये स्ट्रिंग का वैल्यू मुझे वापस से यूज करना है मेरे प्रोसेस में, सेलेनियम में। सो फॉर दैट थिंग वी यूज JDBC connectivity there also। स्टेटमेंट इंटरफेस, जैसे वहां पे हम लोगों ने ये रिजल्ट सेट देखा ना, रिजल्ट सेट हैविंग और स्टेटमेंट हैविंग अ डिफरेंट टाइप। ठीक है, स्टेटमेंट के 3 टाइप है, वो स्टेटमेंट के टाइप देख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट इंटरफेस प्रोवाइड मेथड टू एग्जीक्यूट क्वेरीज विद इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर में क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, द स्टेटमेंट इंटरफेस इज अ फैक्ट्री ऑफ अ रिजल्ट सेट, दैट इज इट प्रोवाइड फैक्ट्री मेथड टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट। अब फैक्ट्री मेथड मींस, फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ डेवलप हो सकती है। तो रिजल्ट, फैक्ट्री ऑफ रिजल्ट सेट मतलब बहुत सारी रिजल्ट सेट हम लोग एक स्टेटमेंट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। मतलब मैंने एक बार ये वाला कनेक्शन बना लिया, स्टेटमेंट बना लिया, आई विल कॉल नंबर ऑफ टाइम, मैं बार बार रिजल्ट सेट को बना सकता हूँ। बट वहाँ पे रिजल्ट सेट 1, रिजल्ट सेट 2, रिजल्ट सेट 3 करना पड़ेगा। मैं कनेक्शन एक ही बार बनाऊंगा, इट विल नथिंग बट अ क्रिएट स्टेटमेंट एंड कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस। बट अ रिजल्ट सेट कैन बी नंबर ऑफ टाइम, ये बार बार बन सकता है। दैट इज वाई रिजल्ट सेट की फैक्ट्री बोल सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट को। commonly used method of statement interface: public execute query, update query, execute boolean is used to query that return many multiple result। और बैच एग्जीक्यूशन इज अ फ्यूचर टास्क। मतलब जब हम लोग बैच चलते हैं, बैच एक अलग चीज होती है। ठीक है, बैच में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक साथ रन हो जाते हैं। ओके, जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ योर क्लास जैसे मैं बोलूंगा 2017 की बैच, तो 2017 में जितने भी स्टूडेंट थे सारे कंप्लीट, सारे एग्जीक्यूट यानी सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो सेम वे में जावा में भी जब हम लोग बैच बोलते हैं, तो बैच जब एग्जीक्यूट होता है तो वो ऑब्जेक्ट सारे एग्जीक्यूट होंगे जो बैच के अंदर रिलेटेड आते हैं। बैच कैन बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डेट, अकॉर्डिंग टू द मंथ, अकॉर्डिंग टू द क्लास फाइल, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने बोला कि आज के सारे ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करना है। जस्ट एन एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे हमारा बिलिंग सिस्टम होता है ना, हमारा लोन का बिलिंग होता है, लोन बिलिंग। तो लोन के बिलिंग में बैकएंड में, लोन बिलिंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि पीछे में बैच चलती है डेली बेसिस पे, कि ये ड्यूरेशन पे यानी हर दिन में आपको वो लोगों के बिल प्रिंट करवाना है, वो लोगों को बिल सेंड करना है जिनका बिल पेमेंट डेट आ जाता है ना। अब नॉर्मल लोन जो एसबीआई का लोन सिस्टम है, उसमें कम से कम करोड़ लोग ने लोन लिया है। तो करोड़ लोगों को बिल ऐसा मैन्युअली सेंड करेंगे क्या? नहीं। फॉर प्रोसेसिंग दैट करोड़ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम वी विल यूज अ बैच। ओके, कि वो दिन, वो स्पेसिफिक डे में सारे लोगों को जो एलिजिबल पेयर है लोन का, उनको बिल जाना चाहिए। दैट्स प्रोसेस कम इनटू कलेक्शन, एक कलेक्शन एक बड़े बल्क में आती है, इज नथिंग बट अ बैच। ओके, सो एग्जीक्यूटिंग अ बैच, we can with the help of statement we can executing a batch also। create execute query, सिंपल एसक्यूएल क्वेरी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये एसक्यूएल क्वेरी select star from table name is nothing but a simple SQL query we can execute with the help of execute query। ये then row set is used to initiate instance in a Java Beans component because it's a property and Java Beans notify mechanism, it's introduced in Java 5।
It is vapor of a result set. It holds tabular data like result set, but it is easy and flexible to use. Advantage of Rosette. The advantage of Rosette are given below. It is easy and flexible to use. It is scrollable and updatable by default. ठीक है. अब ये Rosette कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे. ये Rosette के 5 कंपोनेंट्स और प्रॉपर्टीज है. JDBC रोसेट, कैचे रोसेट, वेब्रो रोसेट, जॉइन रोसेट और फिल्टर रोसेट. रोसेट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है. ठीक है. जो हम लोगों ने वैल्यूज दिए थे ऊपर में, ये वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज दिए ना हम लोगों ने, यूजर नेम, पासवर्ड, URL. सो वी कैन गो विद द प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग दे सकते हैं. मैंने बताया था 3 अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट होते हैं. ठीक है. तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट: कॉलेबल स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर SQL क्वेरी एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर पैरामीटराइज्ड क्वेरी. तो पैरामीटराइज्ड क्वेरी हम लोग देखेंगे नीचे में. ओके. तो इट विल नथिंग बट यूज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क और पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं, जो सिंपल SQL query के अलावा यूज होता है. कॉलेबल स्टेटमेंट is used to call a stored procedure. Stored procedure is nothing but a collection of number of SQL queries. SQL queries, बहुत सारी SQL queries को एक साथ रन करने के लिए हम लोग stored procedure लिखते हैं, जो SQL फॉर्म में होती है. ओके. उसको कॉल करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करना है मेरे को जावा से, तो मैं कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करूंगा. इट इज प्रीफर्ड व्हेन पर्टिकुलर SQL query is to be executed only once. एक ही बार यूज करना है. इसको हम लोग नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी को या प्रीपेड स्टेटमेंट को. इट इज प्रीफर व्हेन स्टोर प्रोसीजर टू बी एग्जीक्यूटेड. जब मेरे को स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है या एग्जीक्यूट करना है तो मैं कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करूंगा. You cannot pass the parameter to SQL query. Yes, we cannot pass the SQL parameter. We can pass the parameter in runtime also. Runtime में parameter pass कर सकते हैं. यहाँ हम लोग पैरामीटर इन एंड आउट में पास करते हैं कि क्या मुझे इनपुट चाहिए, क्या मुझे आउटपुट चाहिए. ये सारे एग्जांपल जब आप देखोगे ना, यू विल गेट दैट कि हाँ ये इस तरीके से वर्क कर रहा है. बट फॉर बेसिक कंसेप्ट यू शुड नो कि यहाँ कॉलेबल स्टेटमेंट में इन आउट कंपोनेंट होते हैं. पैरामीटर प्रीपेड स्टेटमेंट में पैरामीटराइज्ड SQL क्वेरी होती है और स्टेटमेंट में सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट क्वेरी होती है. तो ठीक है. दिस इंटरफेस इज मेनली यूज्ड टू DDL स्टेटमेंट लाइक क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एक्सेट्रा. It is used for any kind of SQL queries which are to be executed multiple times. बार बार कोई चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं. इट इज यूज टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर एंड फंक्शंस. इट्स परफॉर्मेंस इज वेरी लो बिकॉज इज सिंपल सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें. द परफॉर्मेंस इज बेटर देन स्टेटमेंट व्हेन यूज फॉर मल्टीपल एग्जीक्यूशन. द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इज वेरी इंटरफेस इज वेरी हाई बिकॉज कॉलेबल स्टेटमेंट क्या करता है, डायरेक्ट मेरे डेटाबेस को हीट करता है और डेटाबेस की क्वेरीज को लेके आता है. ठीक है. डेटाबेस में जो मेरे SQL क्वेरीज या प्रोसीजर लिखी हुई है उसको कॉल करता है, तो वो इंटरनली प्रोसेस होने के बाद मुझे आउटपुट देगा. यहाँ पे कैसा होता है कि प्रोसेस की आउटपुट आया, प्रोसेस की आउटपुट आया. तो दिस इज द टू वर्किंग ऑन द सेम मैनर. ये सेम मैनर में वर्क करता है. बट जब मैं कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करता हूँ तो कॉलेबल स्टेटमेंट क्या करेगा कि मेरे स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेगा और स्टोर प्रोसीजर में अंदर में बहुत सारी क्वेरीज लिखी है, सिलेक्ट लिखा है, अपडेट लिखा है, ठीक है, डिलीट लिखा है. so it will executed all at once and come back after the whole performance. सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आउटपुट देगा वो. so that's why it is more higher performance. This is main focus of this differentiation between differentiate करके देने का ये है कि it is more important question in your interview process. इंटरव्यू प्रोसेस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड व्हाट इज कॉलेबल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल ऑफ देम. मतलब तीनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है वो बताने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके. यू कैन राइट इट डाउन. आप लोग लिख सकते हो इसको.
Okay, we will proceed further. Now JDBC complete हो चुका है यहाँ पे. So JDBC include the database connectivity between your Java program to a database, and database can be of any type. You can go with MySQL, Oracle, you can go with a MongoDB, DB2 और IBM. ठीक है. So आप कोई भी बड़े फ्रेमवर्क में भी काम करोगे विद द हेल्प ऑफ जावा, यू हैव टू गो विद द जेडीबीसी कनेक्टिविटी. ओके, वहाँ पे जेडीबीसी टेम्पलेट आ जाती है, बट वर्किंग सेम ही रहेगा. सेम वे में ही आपको ड्राइवर को इनिशियलाइजेशन करना है. ओके, सेम वे में आपको ड्राइवर का गेट कनेक्शन करना है और स्टेटमेंट कलेक्शन या फिर कॉलेबल स्टेटमेंट या प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल करना है यहाँ पे. ओके, नथिंग चेंज इफ फ्रेमवर्क और एडवांस वर्जन ऑफ जावा इज कम इनटू पिक्चर. आप जहाँ बड़े वर्क प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर बड़े फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, तब भी जेडीबीसी का सेम ही फॉर्मेट रहेगा. ओके, SS Fire now come with the last topic of your syllabus and today's session also. SS modifier, there are mostly three type of SS Fire, but in Java there are number of things. The accessifier in Java specify the accessibility or scope of a field, method, constructor or a class. Okay, scope मतलब कि कहाँ तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ तक हम लोग उसको access कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कहाँ restrict करना है. That's all come in with the SS modifier. We can change the SS level of field, constructor, method or a class by applying the SS modifier. SS modifier use करते हैं हम लोग, public करते हैं, private करते हैं. Public करते हैं तो कहीं पे भी use हो सकता है. Private करूँगा तो it will use inside the classes. That all part of the SS modifier. Private, the SS level of a private modifier is only within the class. It cannot be accessed from outside the class. Okay, एक बार मैंने private वेरिएबल बना दिया, प्राइवेट मेथड बना दिया, तो मैं क्लास के अंदर ही उसको यूज करूंगा, बाहर यूज नहीं कर सकता. दैट इज द प्राइवेट एसेसिफायर. डिफॉल्ट, जब हम लोग नहीं डिफाइन करते कोई चीज तो जेवीएम ऑलरेडी डिफाइन कर देता है. दैट इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट मॉडिफायर. द एसएस लेवल ऑफ मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज. इट कैन नॉट बी accessed from outside the package. If you do not specify any level, it will be default. JVM by default कर देता है. Okay, protected, the SS level of a protected modifier is within the package and outside the package through the child class. Child class के through हम लोग उसको use कर सकते हैं. Okay, if you do not make the child class, it cannot be accessed from outside the class. अब ये child class क्या है, हम लोगों ने class in inner class और nested class किस में देखा है. ठीक है, child class is nothing but a class which extend or which inherit the super class values. super class को use करता है. Okay, एज एन एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सुपर क्लास जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास, तो उसकी मेथड यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडिंग देयर और ओवरराइड देयर मेथड. Public, the SS level of public modifier is everywhere. It can be accessed from within the class, outside the class, within the package and outside the package. ठीक है, हम लोग SS level modifier पब्लिक जो है वो कहीं से भी यूज कर सकते हैं. एंड अभी तक तो कोडिंग में हम लोगों ने देख चुका है कि पब्लिक कैसे वर्क करता है. बेसिक क्वेश्चन है जावा में, बट मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पर हम लोग इग्नोर कर देते कि एसिडिफायर हमें पता होता है, बट वो क्वेश्चनिंग घुमा घुमा के करते हैं. मींस इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. एट दैट टाइम प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड कम इनटू पिक्चर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. There are many non-accessifiers, such as non-accessifier means we can use it for making the class, method or variable की access करना है कि नहीं करना है. That is nothing but static, abstract, synchronized, native, volatile and transit. Static check किया हम लोगों ने. abstract is for abstract class, abstract method. Synchronized is used for thread purpose. thread एक समय में एक ही use होना चाहिए. Native is nothing but a method which is come from your old languages. volatile भी thread में use होता है and it will not change the value. And transits is used in serialization. serialization में जब हम लोग वैल्यू ऑब्जेक्ट से बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसी कुछ वैल्यूज है जिसे चेंज नहीं करना है, एट दैट टाइम वी यूज ट्रांजिट. ओके,
ट्रांजिएंट तब यूज होता है जब सिरियलाइजेशन में हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं. सिरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू अ बाइट कोड, है ना. सिरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू बाइट कोड एंड बाइट कोड से वापस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके आना. लेकिन कुछ वैल्यू को विदाउट चेंज किए हुए प्रोसेस करना इज नथिंग बट अ ट्रांजिएंट. ओके. A class cannot be private or protected except nested class. This is the differentiate between और बोल सकते हैं कि यूजेस कैसा कर सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन. प्राइवेट को हम लोग क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, विद इन अ क्लास, विद इन अ पैकेज, outside the package and outside the package. No, we cannot use a private within a package. We can use within a class only. Default can be used within a class, within a package. We cannot use outside the package and outside the package by subclass. Protected can be used within a class, within a package, or within outside a package, but with the help of subclass. And without subclass, we cannot use a protected. At public, we can use anywhere. Okay, we can use anywhere. Write it down in your notebooks for this differentiation, and is more useful for your interview questions and your coding purpose. Coding के लिए बहुत ज़्यादा use होता है. All done. लिख लिया आप लोगों ने? Sorry. Completed? Okay, okay, fine. Yes, further process comes to a 2 day session. मैंने कुछ ज़्यादा लेंथी सेशन किया नहीं आज. बेसिक एंड सिंपल कंसेप्ट ही आपको कंक्लूड किया करवाया है. तो come to an end and summaries of today's session. We come with a thread having process, thread, life cycle of thread, multi-thread, communication between threads, synchronization, priority, demonstrate, wait, and notify. All these come into picture with all comes into a syllabus or a process or programming while we go with the thread. ठीक है. और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को थ्रेड में यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एट अ टाइम नंबर ऑफ प्रोसेस और नंबर ऑफ डेटा यूज होता है. तो मल्टी थ्रेडिंग का प्रोसेस या फिर आपको प्रोग्रामिंग करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सिंपल है. जैसे मैंने आपको सिंपल प्रोग्राम को मैंने थ्रेड में कन्वर्ट करके दिखाया है ना, सेम ही प्रोसेस है. बस आपको जो प्रोसेस रन करनी है उसको रन मेथड के अंदर में आप इंक्लूड कर दोगे. Okay, whatever the method you have to execute, whatever the manipulation, calculation, any process, any execution you have to do with a thread, come with a run method. Run method के अंदर में लिखो और run के बाद start वो thread को start कर दो. तो automatically जो भी run method के अंदर में लिखा है वो thread का run हो जाएगा with the help of start method. Okay, and then synchronization, priority and all this thing. Then we go with हम लोगों ने फिर हम लोगों ने फिर
एप्लेट्स देखा, एप्लेट्स में व्हाट इज एप्लेट, लाइफ साइकिल एंड एग्जांपल एंड यूजेस। एग्जांपल में हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल देखा कि कैसे जावा का प्रोग्राम को मैंने HTML में कॉल किया है, ठीक है। आउटपुट देखा नहीं है, वी विल सी आउटपुट लेटर ऑन। Then swing के GUI component having labels, windows, dialog box, ठीक है, event management, event handler, buttons, menus, ठीक है, components, all that things we see in Swing GUI. Okay, its advantage and uses, it's used for desktop application mostly, making a desktop application. Then JDBC, Java database connectivity, its features is introduction, driver. There are 4 type of driver: native driver, thin driver, JDBC, ODBC driver, and writing Java JDBC code to connect to database. Database में connect करने के लिए हम लोगों को 5 step से जानी पड़ती है. Register the driver, get connection, then statement, then execute the query, and then terminate or close the connection. A CRUD operation is nothing but a create, delete, create, review, update, and delete the things. Okay, is a CRUD operation. Statement type, there are 3 type of statement, prepared statement, and callable statement. Row set is used to set the property of your database, and result set to get the value in a result set. रिजल्ट सेट की भी अदर टाइप्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग वैल्यूज को यूज करते हैं. गुड गुड वन. And then SS modifier, there are 4 mostly SSifier, that is private, public, and protected. Default is by default by the JVM, Java Virtual Machine directly. अगर नहीं मिला है कुछ तो default दे देता है. Otherwise private, protected, and public is a mostly SSifier. And non-SSifier just like synchronization, static, then final keyword, and volatile, transit. Transit is used in a serialization. Volatile is used in thread. Okay, so this comes to an end, and hope you like all my sessions of this. जो मैंने PPT के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया, वो सारी चीजें आपको समझ में आई. आई होप सो. जो चीजें समझ में नहीं आई, we will conclude in all programming and all project work. Now the coming session we will go with the programming. आगे वाले सेशन में हम लोग प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट्स में देखेंगे. मैं सारी चीजें आपको डिस्कस कर दूंगा कि कैसे हम लोग आगे में प्रोसेस करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ योर डिबगिंग. इक्लिप्स में हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो कैसे डिबगिंग करते हैं एंड हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट. हमारे कोर्स में एक ही प्रोजेक्ट था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बट आई ट्राई टू मेक अ 2 प्रोजेक्ट. वन इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज व्हाट वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन का मैंने JSP सर्वलेट पढ़ाया नहीं है आपको, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे उसको कि कैसे वर्क होता है. ओके, सो आगे के जो भी प्रोग्रेस है हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे. दिस इज व्हाट कम्स टू एन एंड. Now we are in YouTube also. You can watch my videos and all. So you can do this, subscribe and hit the bell icon. And if you want my code repository to be useful for you, put a star mark there. And any question now? Question sessions comes to start. Anything जो आपको पूछना है, नहीं समझी हो, वो पूछ सकते हो. And this line is for YouTube. Okay. Any question in thread, applet और process और assignment? Assignment बहुत सारे assignments दे चुका हूँ मैं, तो उसमें आपको कोई questions है, उसमें कुछ पूछना है, you can ask me. For project session means now we are come means हम लोग project में deal करेंगे, तो project कैसे बनाते हैं, so and coding को कैसे हम लोग use करेंगे,
दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अवर दिस क्लासेस। ये जो मैंने अभी तक 6-7 क्लासेस में पढ़ाया है आपको, ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, थेरोटिकल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, ठीक है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स 0% डेवलपमेंट।